class. In this video, we are going to solve it's your A2 Maths Paper 3, and we are going to start Feb-March 2022. Variant is 3-2. Alright, so let's start this paper. First question from the topic inequalities, very easy question. 2x plus 3 greater than 3 times x plus 2 whole square. So when you have the sign of inequality on both sides, the easiest way is to apply a square on both sides, right? So we are going to do the same. We need to apply square on both sides. When you apply a square on both sides, you will end up an identity here that leads to a square, it's 4x square, plus 2ab, 2 to the 4, 3 are 12x, plus 3 square 9, is greater than 3 square is 9. Inside the bracket, again it is an identity, a square plus 2 2s are 4x plus 4, right? Now we need to solve it. So it will be 4x square plus 12x plus 9 is greater than 9x square plus 9 4s are 36x plus 9 4s are 36. So 9x square minus 4x square, it's 5x square. 36 minus 12, it's 24x. And 36 minus 9, it will be 27. And it's 0. 36 minus 9. Wait. Right now you have a quadratic equation. Now to solve that quadratic equation, we need to apply either the quadratic formula or middle term. So it will be 5x square plus 24x plus 27 is lesser than 0. So once you had applied the quadratic formula here, you will get x plus 3 and x plus 9 over 5 lesser than 0. ये वो सॉल्यूशन है जो मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद आपको मिलेगा, ठीक है. Now we have a sign of lesser than here. That means if I roughly sketch the figure of this curve, I will get a shape like this one. So we have a negative value of x, it's minus 3 and minus 9 over 5, right? So we have minus 9 over 5 and we have minus 3, right? And if you connect these two, you will get a shape like this. Since we have a sign of lesser than, it means we need to go inside that curve area, right? और इस कर्व एरिया जाने में आपको वैल्यूज क्या होंगी? The values for x should be greater than minus 3 and lesser than minus 9 over 5. That is your final answer for the first question. Moving towards the next one. On a sketch of an arcane diagram, shade the region whose point represent complex number z satisfying the inequality z plus 2 minus 3 iota lesser than equals to 2 and argument of z lesser than equals to 3 over 4 pi. तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं. बेसिकली ये जो कंडीशन है कौन सी है आपके पास? यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल. इट्स योर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट. और यहाँ पर आपके पास सिंपल एक एंगल या आप समझें कि एक आपकी हाफ लाइन वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, ठीक है. सो फर्स्टली आई नीड टू राइट द एक्सप्रेशन इन करेक्ट फॉर्म. ये भी लिखा हुआ है z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, राइट. हमारा एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए z माइनस a प्लस बी आयोटा. इस फॉर्म में एक्सप्रेशन हमारा होना चाहिए. तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल गेट z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा. ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ. इस एक्सप्रेशन से हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होगा इट इज़ माइनस 2,3 और इस सेंटर पॉइंट पे जो आपका रेडियस आ रहा होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 2. तो अब आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा. मैं रफली स्केच कर रहा हूँ बट आपने रफली नहीं करना. आपने इसको प्रॉपर कंपास वगैरह से मेजर करके बनाना होता है. ऑलराइट, सो वी हैव माइनस 1 माइनस 2 minus 3 positive 1 positive 2 positive 3. ऑलराइट, तो मेरे पास जो सेंटर पॉइंट होगा इट इज़ माइनस 2,3. तो माइनस 2,3 ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा एंड रेडियस इज़ 2 यूनिट्स ना. तो 2 यूनिट यहाँ भी रहेगा और 2 यूनिट नीचे भी आएगा. तो अगर मैं रफली बनाऊँ, मेरा कुछ सर्कल कुछ ऐसा जा रहा होगा.
ऑलराइट, दैट इज टोटली रफली। आपने इस पे रख के आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट पे रखा कंपास, सर्कल बना दिया आपने 2 सेंटीमीटर का, तो आपको एक एक्चुअल एक्यूरेट सर्कल बन जाएगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपने बनाना कैसे होगा। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, हाउ टू ड्रॉ द सर्कल एट द पॉइंट -2, 3 हैविंग अ रेडियस ऑफ 2। मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, इसका रेडियस जो होगा मेरे पास इट्स 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z लेसर देन इक्वल्स टू 3/4 पाई। तो फर्स्ट यूनिट टू आइडेंटिफाई किया है 3/4 पाई क्या होगा। नाउ पाई इज व्हाट, पाई इज 180 डिग्री। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2s आर 4, 2 90s आर 270, तो दैट लीड्स टू 135 डिग्री। तो अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी 135 की और स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, आर्गुमेंट को भी पहले अगर हम इसको भी सेट करें तो ये लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 0 + 0 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 3/4 और पाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है इट्स 0,0, मतलब ये मेरा ओरिजिन की बात कर रहा है। ठीक है ना, जब ओरिजिन का पॉइंट आ गया यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ हाफ लाइन हियर, ये मैंने राइट से बनाई है। एंड नाउ यू नीड टू मेजर दैट एंगल 135 डिग्री। जब आप एंगल मेजर करोगे 135 का, सो यू विल गेट अ लाइन लाइक दिस, और इसमें 135 का ये एंगल होगा। अगेन यू नीड टू डू इट विद हेल्प ऑफ डी। ये एंगल आपका 135 का हो जाएगा, तो यू विल गेट अ फिगर सिमिलर टू दिस वन। अब आपको करना है शेड। शेड क्या कह रहा है ये, इस रीजन का, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ये 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रहेगा, मतलब सर्कल से बाहर नहीं जा सकता, और जो इसका एंगल होगा इट इज लेसर देन 135। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि रीजन जो वाला शेड होगा, ऐसा उनकी इमेजिनेशन होती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों बेटा, देखें, जो आपका रीजन शेड होगा ना, पहली बात है वो ये रीजन शेड किया जाएगा आपका, दैट विल बी द शेडेड पार्ट। अब ये वाला क्यों हुआ, क्योंकि आपको उसने कहा एंगल मस्ट बी लेसर देन 135। देखिए मैंने 135 का एंगल तो मार्क कर दिया, मुझे बताएं कि 130 का एंगल कहाँ होगा। तो 130 का एंगल इस लाइन से कहीं पहले होगा, ऐसा ही होगा ना। तो जितना एंगल कम होगा वो सर्कल की तरफ राइट पे मूव करता रहेगा। एंगल छोटा होगा तो ये मूवमेंट यहाँ पर होगी। अगर अगर ये कहता है एंगल बड़ा है 135 से, तो मेरी मूवमेंट इस लाइन से इधर आती, तो मैं यहाँ रीजन शेड करता। बट क्योंकि लेसर देन का साइन है, इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। Next one. It's from linear law. We have the graph of ln x and ln y. The variable x and y satisfying the equation xn y square equals to 2. So x power n y power 2 is equals to c. Where n and c are constants, the graph of ln y against ln x is a straight line passing through the points 0.31 and 1.21 and 1.06.91. Find the value of n and the value of c, correct to two decimal places. पहली बात याद रखिएगा, लेट सपोज कि मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ 1.06, तो ये 1.06 मेरे पास x की वैल्यू नहीं है, ये मेरे पास ln x की वैल्यू है। इस बात में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन है बेटा x पावर n y पावर 2 इज इक्वल्स टू c। इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी ln अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी ln अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ln y मुझे चाहिए y एक्सिस पे, x एक्सिस पे। अब यहाँ पर ln की लगना है हम लोग आइडेंटिटीज, तो ये हो जाएगा मेरे पास ln ऑफ x पावर n y स्क्वायर इक्वल्स टू ln c। जहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ पर एडिशन होगी, तो ये हो जाएगा ln ऑफ x पावर n प्लस ln ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln ऑफ c। ये मैंने ln की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ठीक है ना। अच्छा, ln ये भी कहते हैं कि ln पावर को कोफिशिएंट बनाता है, तो अगर आपके पास पावर n है तो ये हो जाएगा n ln x प्लस 2 ln y इज इक्वल्स टू ln ऑफ c। ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं y को सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 ln y इज इक्वल्स टू माइनस n ln x प्लस ln c। 2 जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा ln y इज इक्वल्स टू माइनस n ln x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ln c डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास है कि इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ ln y, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास ग्रेडियंट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रेडियंट की, तो आप सबको पता है ग्रेडियंट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। तो मेरे पास m1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने कहा यार इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको हम ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो y2 क्या है हमारे पास 1.21 माइनस 0.91
डिवाइडेड बाय x2 क्या है मेरे पास 0.31 माइनस 1.06। सिंप्लीफाई करते हैं इसको एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इन दिस पार्ट। एक मिनट मैं करता हूँ इसको। 1.21 माइनस 0.91 divided by 0.31 minus 1.06 minus 0.4. So you got the value of gradient, it's minus 0.4. यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन में हम ये पढ़ चुके होते हैं कि हमारे पास अगर लिखा होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो हम ये कहते हैं कि जो कुछ x के साथ लिखा हुआ होता है दैट इज द कोफिशिएंट, राइट। तो अगर इस चीज दैट इज द ग्रेडियंट, सॉरी। तो अगर इस चीज को मैं अपनी इस इक्वेशन में अप्लाई करूं तो ये -9/2 क्या होगा मेरे पास, दैट इज योर ग्रेडियंट, राइट। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है -9/2 और जो हमने ग्रेडियंट निकाला है कोऑर्डिनेट से वो आया -0.4। So basically you got the value for n and that is equals to 0.8। ये आपके पास आपके n का आंसर आ गया। यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगी बात। आगे देखें। अब जब आपके पास ln का आंसर n का आंसर आ गया, अब आप दोबारा इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं बेटा। सो यू गॉट ln y is equals to -0.8 divided by 2 ln of x plus ln of c upon 2। अब आप यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेस कर सकते हो। तो लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ 0.31 एंड 1.21। आप सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू प्लेस करके इसकी, तो जहाँ पर ln y वहाँ आ जाएगा 1.21 इज इक्वल्स टू -0.4, ln x की जगह आ जाएगा 0.31 प्लस ln c डिवाइडेड बाय 2। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ln c इज इक्वल्स टू 2.668। You need to apply exponential on both sides, so c is equals to e to the power 2.668 and that is equals to 14.41। ये आपका आंसर आ गया c का। ऑलराइट, आई होप कि क्लियर हो गया हो आपको। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। The parametric equation of a curve are x is equals to 1 minus cos theta and y equals to cos theta minus 1 over 4 cos 2 theta show that dy over dx is minus 2 sin square half theta। ऑलराइट, यहाँ पर आपके पास हाफ थीटा का मतलब है कि यहाँ डबल एंगल फार्मूला यूज हो रहा होगा, ठीक है। चलें पहले तो स्टार्ट करते हैं। x इज व्हाट, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 1/4 cos 2 थीटा। पहले तो इनको डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैंने कहा भाई dx ओवर d थीटा, 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस कॉस हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा। यहाँ भी डेरिवेट करते हैं dy ओवर d थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, -1/4 अपनी जगह, cos 2 थीटा हो जाएगा -2 साइन, नॉट -2, अभी -2 नहीं, बाद में आएगा। तो cos 2 थीटा होगा माइनस साइन 2 थीटा और उसके बाद उसका एंगल का डेरिवेटिव दैट इज 2। ये आई मेरे पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन। सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 1s are 2 and 2 2s are 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास हो गया आपकी डिफरेंशिएशन। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स। सो dy ओवर डी एक्स मेरे पास बराबर होगा dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स, ठीक है। dy ओवर डी थीटा हम निकाल चुके हैं, इट्स माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, अब डी थीटा अपॉन डी एक्स मतलब इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 साइन थीटा। ऑलराइट, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं, ले लेते हैं एलसीएम इन दोनों पर, ठीक है ना। तो ये आएगा -2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ये आपके पास होती है आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इसकी आइडेंटिटी है बेटा, याद रखिएगा। और इनटू 1 साइन थीटा अपनी जगह एज इट इज आ गया। अब यहाँ न्यूमरेटर से आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, तो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा माइनस, बल्कि एक काम करते हैं 2 साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 भी तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब ये बचेगा -1 प्लस कॉस
थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा। इसका थोड़ा सा फायदा हमें ये हुआ कि हमारे पास थोड़ा नंबर कैंसिल हो गए, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया कॉस थीटा -1। ये मेरा अभी तक फाइनल आंसर आ रहा है किसका, डी वाई ओवर डी एक्स का। से आगे बढ़ने से पहले जो ना आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए क्या। देखिए आप गौर से देखिएगा क्योंकि इससे आगे आइडेंटिटी का गेम है। आपके पास cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी होती, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप अगर हम बनाएं तो हम ये देखें यार, अगर यहाँ cos 2 थीटा है तो यहाँ पर जो एंगल हुआ ये इसका आधा हुआ। मैं मार्क भी कर रहा हूँ कि अगर यहाँ 2 था तो यहाँ आपके पास 2 का हाफ ऑफ 2 हो गया, तो डिवाइड बाई 2 हो गया ये, ठीक है। तो अगर मैं इसी आइडेंटिटी के साथ ऐसे लिखूं कि यार cos थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, और अब थीटा नहीं आएगा, अब आएगा 1/2 थीटा। वही वाली बात कि जो एंगल यहाँ था उसका आधा आ गया यहाँ पर। तो ये आइडेंटिटी को यहाँ पर पिक करना, इसका भी एक मार्क था। तो अब आपके पास जो आंसर आ रहा था डी वाई बाई डी एक्स का, हमारे पास आ रहा था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने cos थीटा की जगह उसकी आइडेंटिटी अप्लाई करी, तो cos थीटा आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर 1/2 थीटा, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, और -1 एज इट इज। अब आपके पास ये 1 और -1 कैंसिल हुआ, तो जो आपका फाइनल आंसर आया डी वाई ओवर डी एक्स का, इट इज इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर 1/2 थीटा, जो कि आपको प्रूव करना था। Alright, moving towards the next one. The angles alpha and beta lie between 0 and 180, and as such that tan alpha plus beta equals to 2 and tan alpha is equals to 3 tan beta. Find the values of tan alpha and beta. अभी क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान होगा जिनको आइडेंटिटी पता होगी, आपको पता होनी चाहिए। सो tan alpha plus beta is equals to tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha tan beta। ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। हमें यहीं से स्टार्ट करना है इसको। तो आपके पास दिया हुआ है tan alpha plus beta equals to 2, तो मैं ये कह सकता हूँ that 2 is equals to, वो पूरी आइडेंटिटी मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha tan beta, ठीक है। अब जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें बेसिकली आपको आइडेंटिटी की एक वैल्यू दी है tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ tan बीटा। ये कह रहा है कि भाई जहां भी आपको tan अल्फा नजर आए वहां पर आप लिख दो क्या 3 tan बीटा। तो मुझे tan अल्फा कहाँ का नजर आ रहा है, यहाँ नजर आया और यहाँ नजर आया। इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, इसकी जगह मैंने लिखना है 3 tan बीटा। तो ये आ जाएगा 3 tan बीटा। वो जो बाद में tan बीटा लिखा है वो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा की जगह आएगा tan बीटा एंड देन tan बीटा एज इट इज, सॉरी 3 tan बीटा, ये तो ठीक है। आप सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आएगा 2 इज इक्वल्स टू 3 tan बीटा प्लस tan बीटा, इट्स 4 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो दैट विल बी 2 माइनस 2 3 आर 6 tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 4 tan बीटा। और अब आपने सिंपल अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है, तो यू विल गेट 4 tan बीटा माइनस 6 हमारा क्या हो जाएगा +6 tan स्क्वायर बीटा एंड +2 हमारा क्या हो गया -2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ला के डिवाइड कर दें तो 2 tan बीटा, ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आने के बाद अब आपके पास ये आ जाएगी आपकी मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको अरेंज कर दूं मैं, तो ये आएगा 3 tan स्क्वायर बीटा, पहले स्क्वायर की टर्म आएगी, प्लस 2 tan बीटा -1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आपकी मिडिल टर्म आ गई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मिडिल टर्म सॉल्व करना यानी सिखा रहा मैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट tan बीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड यू विल गेट tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। ऑलराइट, तो आपके पास अल्फा के दो आंसर्स आएंगे। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज
and alpha is equals to 18.43 डिग्रीज। ऑलराइट, तो अब आपके पास क्वाड्रेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। आपकी रेंज कहाँ है, 0 से 180 है। रेंज दी है 0 से 180, मतलब या तो फर्स्ट है या सेकंड है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 10 बीटा माइनस वन था, 10 बीटा माइनस वन था, तो बेटा 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, 10 तो सेकंड में नेगेटिव होगा और फोर्थ में नेगेटिव होगा। हमारी तो रेंज खाली सेकंड से जाएगी, तो फोर्थ वाले को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर लिखा था 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1/3, तो 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, क्योंकि थर्ड रेंज से बाहर जा रहा है, कैंसिल आउट कर दिया। तो अब जो आंसर होंगे वो खाली सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे। तो मेरे पास एक आंसर तो अल्फा का आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 18.43, ये तो मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल आ रहा है 45, तो यहाँ जो थीटा आएगा मेरे पास, इट विल बी 180 माइनस 45, दैट इज 135। तो आपके थीटा के दो एंगल फाइनल आ रहे हैं, कौन कौन से, थीटा इज इक्वल्स टू 18.43 एक एंगल आ रहा है हमारे पास डिग्री में, और एक आ रहा है 135 डिग्री में। ये आपके दो फाइनल आंसर्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, find the complex number w satisfy the equation w square plus 2 iota w star equals to 1 and such that real part of w is less than equals to 0. Give your answer in the form of x plus iota y where x and y are real. तो पहले तो हम w को कुछ सपोज करते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ w मेरे पास बराबर है a प्लस बी आयोटा के, सही है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं w को। तो अगर w ये है, तो कोई मुझे बताए कि यार w स्टेरिक क्या होगा। ये आ जाएगा सिंपल a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब हमने इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन में आपको दिया हुआ है w स्क्वायर प्लस 2 आयोटा w स्टेरिक इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू प्लेस करते हैं। w की जगह कौन आएगा, हमने लिया है a प्लस बी आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा w स्क्वायर की जगह a माइनस बी आयोटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। आइडेंटिटी एक्सपेंड करी, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2a आयोटा माइनस 2b आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें मालूम है अच्छी तरह कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर था जो कि बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास माइनस बी स्क्वायर आ गया, प्लस 2a आयोटा प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ भी प्लस क्यों आया, सेम रीजन कि आयोटा स्क्वायर था जो कि एक्सपेंड होकर -1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन अरेंज हो गई। अब इसको मैं और अरेंज ऐसे करता हूँ, जिनके पास आयोटा उनको साथ लिखूंगा और जिनके पास आयोटा नहीं उनको साथ लिखूंगा। तो a स्क्वायर माइनस, अच्छा बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अच्छा ये 2b है, सॉरी ये 2b है, ये बी स्क्वायर नहीं है, 2b है। तो अब ये होगा a स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर। ये वो हैं जिनके पास आयोटा नहीं है, और जिनके पास आयोटा है वो कौन है, वो है 2ab आयोटा प्लस 2a आयोटा, ऐसे ही है। और इज इक्वल्स टू हमारे पास है 1। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन तो एक आ रही है और अननोन हमारे पास दो हैं, इसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो अब क्या करें भाई, अब काम बहुत सिंपल है। अगर मैं इस 1 के साथ सिर्फ ये लिख दूं 1 प्लस 0 आयोटा, क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हम कंपेयर कर सकते हैं, एक उनको जिनके पास आयोटा है और एक उनको जिनके पास आयोटा नहीं है। तो जिनके पास आयोटा नहीं है वो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ इसको इक्वेट किया जाएगा 1 से। मैं कहूँगा a स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर हमने किया 1 से। और एक वो लोग जिनके पास आयोटा है वो है हमारे पास 2a प्लस बी आयोटा, और यहाँ पर 0, हम लिखेंगे 2ab प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। ऐसे आपने दो क्वांटिटीज को अलग अलग इक्वेट कर दिया, ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं इसको। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर हमें काम करते हैं 2a कॉमन ले लेते हैं। तो आपने 2a कॉमन लिया, क्या बचा, b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको 2a को 0 से इक्वेट किया, 2a इक्वल टू 0, और b प्लस 1 को 0 से इक्वेट किया। तो आपके पास एक आंसर आया a का 0, और एक आपका पास b का आंसर आया -1। ऑलराइट, अब हमने इन वैल्यूज को प्लेस करना है अपनी इस इक्वेशन में। तो a स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
अब यहाँ पर मैंने प्लेस किया जो मेरे पास a की वैल्यू, अच्छा यहाँ 2 लिखा हुआ है, 0 था, ये a इज 0। अब मैंने यहाँ पर a की जगह वैल्यू प्लेस करी कि यार a बराबर मेरे पास आया था 0 के। तो जब a 0 आ रहा था उस वक्त b क्या आ रहा था, ये चेक करते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 2b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन को अरेंज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन गई आइडेंटिटी, दैट इज b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड यू गॉट द वैल्यू फॉर b विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जब मेरे पास a की वैल्यू 0 है उस वक्त मेरे पास b की वैल्यू 1 है। ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब आपके पास b की वैल्यू -1 भी तो आई थी हमारे पास। तो जब b, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जब b मेरे पास -1 था, अब दोबारा अपनी इक्वेशन में आ जाए, कौन सी इक्वेशन में, a स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपकी इक्वेशन थी। अब यहाँ पर आपने b की जगह -1 को प्लेस किया, तो ये आया a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 1, a square equals to 1 plus 3 4, apply root on both sides, so a is equals to plus minus 2। ये आपके पास आंसर आया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब b की वैल्यू मेरे पास -1 थी उस वक्त a का आंसर मेरे पास +-2 आ रहा था। अब कौन सा पिक करेंगे वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास जो हमने सपोज किया था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, वो था a प्लस बी आयोटा, 2 दफ़ा लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी आयोटा, जिसको हमने सपोज किया w, ठीक है। अब आपके पास एक सेट क्या था, जब आपके पास a 0 आ रहा था पहला वाला सेट तो b1 था, जब a 0 है b1 है तो w बराबर आ जाएगा आपके आयोटा के, ये आपका एक सेट आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या था, जब आपके पास b -1 था तो मैंने कहा w इज इक्वल्स टू b -1 आयोटा, ठीक है ना। यहाँ पर a कौन सा आएगा, +2 या -2, तो इसके लिए आपको एक कंडीशन दी थी दैट रियल पार्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन हम यहाँ कंसिडर किया जाएगा -2। तो आपके पास a का आंसर आएगा यहाँ पर -2, तो ये लिखा हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। एक w का आंसर ये आ गया मेरे पास और एक w का आंसर ये आ गया मेरे पास। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, by sketching a suitable pair of graphs so that the equation 4 minus x square equals to sec half x has exactly one root in the interval from 0 to pi। इसके लिए ग्राफिंग का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो स्केचिंग का, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक ग्राफ लेकर आए आप माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो मेरे पास जो माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो ऐसे बनेगा, दैट इज अ ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा होगा, ठीक है। मैं इसको दैट इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कुछ बनेगा, रफली बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 कदम ऊपर हो जाएगा, तो जो ग्राफ मेरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, राइट। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो बात आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, जो कि इजी पार्ट था। अब आते हैं सेक एक्स के ऊपर। सेक से पहले आपको ये आइडिया हो कि यार अगर ग्राफ होता है हमारे पास y इक्वल्स टू कॉस एक्स का, तो ये ग्राफ कैसा बनता है। मैं बस इसके साथ कनेक्ट करूंगा सेक को, फिर सेक को मैं अलग बना के दिखाऊंगा। y इक्वल्स टू कॉस एक्स हमारे पास हो तो ये हमारा ग्राफ y इक्वल्स टू कॉस एक्स का बन रहा होता है, ठीक है ना। अगर हम इसके साथ y इक्वल्स टू सेक एक्स बनाए, क्योंकि सेक को बताने के लिए कॉस अगर आपको पता है तो सेक आप इजीली बना लोगे। पहला काम क्या होता है, जहां पर कॉस 0 हो रहा होगा वहां पर आप बना लोगे इसके एसिम्प्टोट्स, तो ऐसे मेरे सेक के एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। अब सेक मेरा स्टार्ट होगा यहीं से, इसी पॉइंट से होगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा अब आपके एसिम्प्टोट की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर जहाँ ये आएगा वहाँ सेक भी मीट करेगा, ये सेक का ग्राफ यहाँ पर ऐसे बना जाएगा, ठीक है ना। और अब यहाँ पर ग्राफ आपके कैसे आएगा, ये ऐसे जा रहा है तो ऊपर से आएगा, ये ऐसे आगे मीटअप करेगा। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू सेक एक्स, ठीक है। अब मुझे ग्राफ इन दोनों का एक साथ बनाना है, बस ये काम है कि आपने दोनों का ग्राफ एक साथ स्केच करना है। तो एक रफली सा मैं पार्ट ले लेता हूँ पहले, ठीक है। मेरे पास y पे वैल्यू कहाँ तक जा रही होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4
2 3 4। अच्छा, उसने आपको रेंज दी हुई है दैट योर ग्राफ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू पाई। अब आपके पास सेक एक्स का आ गया। चले, पहले अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, वो अगर y 0 होगा तो ये x को कट करेगा 2 और -2 के ऊपर ना, तो ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आ गए, तो मेरा ग्राफ ऐसे चल रहा होगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ इसका ऐसा पार्ट चल रहा होगा। ये मैंने वही पार्ट बनाया जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बेसिकली ये यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, आपने इसको थोड़ा और स्केच करना है स्केल पेंसिल के साथ, तो और अच्छा कट बनेगा आपके पास। अब आपके पास दूसरा ग्राफ y इक्वल्स टू sec 1/2x। तो जब मेरे पास वैल्यू 0 होगी तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ग्राफ मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर ग्राफ की मूवमेंट कैसी होगी। अब आपके पास 90 अनआइडेंटिफाई कब हो रहा था, सेक 90 पर ना। तो 90 कब होगा, जब मैं अपने पास x को क्या प्लेस करूँ। अगर मेरे पास x 180 होता, सही है ना, 180 होता तो ये 90 हो रहा होता पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एसिम्पटोट बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आगे जाके 90 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है ना, तो 0 से लेके 90 तक जो उसने दिया, पाई तक जो आपके पास इंटरवल आ रहा है, उसमें ग्राफ एक ही दफ़ा मीटअप कर रहा होगा। ये आपको शो करना था, ये आपका आंसर है। वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट द रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पर हाफ लेते हैं, एवरेज लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो हमारे पास जो इनिशियल x1 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट लीड्स टू 1.5। अब आपने क्या करना है, आपने आइट्रेशन करनी है। यहाँ पर किस में आइट्रेशन करनी है भाई, आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक हाफ एक्स। इस पर आपने रूट की वैल्यू, सॉरी तो रूट है, आइट्रेशन तो बाद वाला पार्ट है। ठीक है, तो बेटा अब आपके पास क्या रहेगा, दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेक 1/2x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपने x की जगह, यहाँ पर आपने x की जगह पहले 1 पुट करना है। ठीक है ना, इसके तो ये तो बाद वाला स्टेप है। यहाँ पर आपने x की जगह 1 पुट करना है और आपको एक आंसर मिलेगा। फिर आपने यहाँ पर x की जगह 2 पुट करना है, आपको एक और आंसर मिलेगा। तो लेट मी वेरीफाई कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। जब हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, सो वी गॉट द वैल्यू 1.86, जब हमने x की जगह 1 पुट किया। और जब हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो वी गॉट द वैल्यू -1.85, राइट। सो यू कैन राइट डाउन द आंसर सिंस वैल्यू ऑफ x change its sign between 1 and 2. Therefore, root lies between 1 and 2। बेटा ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, आपको लाजमी लिख कर आनी स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आ जाए यूज द आइट्रेशन फार्मूला, जहाँ का पहला स्टेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ पर x की वैल्यू नहीं है आपके पास, तो आप दोनों वैल्यू का हाफ लोगे। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1.5। तो अब आपने x1 पे क्या लेना है, आपने पहला स्टेप शो करना होता है। ठीक है ना, xn+1 हो जाएगा। तो मेरे पास पहली वैल्यू n की क्या हो जाएगी, इट विल बी 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब आपने कहा x2 क्या हो जाएगा, तो x2 आ जाएगा 4 माइनस सेक 1/2 और xn की जगह x1 की वैल्यू 1.5 विद द रूट साइन। और अब आप इसको सॉल्व करते रहोगे। इसको सॉल्व किया, आपके पास वैल्यू आ रही है x2, जिसको मैं सेकेंड इटरेशन कह रहा हूँ। x2 इज 1.6227। फिर सॉल्व किया आपने, x3 1.5961। फिर सॉल्व किया x4 1.6023। फिर सॉल्व किया x5 1.6009 और एक और दफ़ा करके देख रहा हूँ मैं, तो x6, वरना x5 तक मुझे आंसर क्लियर हो गया था, 1.6012। तो आपके पास जो x का आंसर, फाइनल आंसर आएगा 2 डेसिमल प्लेस पर, वो आएगा 1.60। ये आपका x का 2 डेसिमल प्लेस का आंसर। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन।
फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड करना है बेटा, लॉन्ग डिवीजन है हमारे पास ये 4x स्क्वायर प्लस 1 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, तो पहली बात, मैं 4x स्क्वायर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 8x क्यूब आ जाए। सिर्फ पहली टर्म को देखते हैं बेटा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2x से। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है 2x से, 2 4 आर 8x क्यूब प्लस, अब x की टर्म के साथ जाएगी, इसको आगे नीचे नहीं लिखिएगा आप, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, चेंज इट साइन, साइन चेंज यहाँ भी हुआ, साइन चेंज यहाँ भी हुआ, एक कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या 4x स्क्वायर, और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा सिंपल आपके पास 7। ठीक है, अब मैंने 2x को किससे मल्टीप्लाई किया, 2x को मैंने मल्टीप्लाई किया सिंपल 1 से, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, कैंसिलेशन हुई, ये आ गया मेरे पास 6। ऑलराइट, तो आपने कोशेंट बताना है, इसका रिमाइंडर बताना है, तो मेरे पास जो कोशेंट आया इसका कोशेंट मेरे पास क्या आ गया, कोशेंट इज 2x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास, रिमाइंडर इज 6। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 सॉरी। ठीक है, अब ये चीज तो हम ऊपर निकाल चुके थे, आप देखें अगर गौर से, तो हम इसी का लॉन्ग डिवीजन कर आए थे, तो डिवाइजर डिवाइडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, अगर हम डिवाइडेंड को डिवाइड कर दें डिवाइजर से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो बेटा याद रखिएगा ये बराबर होता है आपके पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइजर, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो ऊपर कोशेंट आया था, वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इट इज आई थिंक 2x प्लस 1 था, 2x प्लस 1, तो आपके पास क्वेश्चन आया 2x प्लस 1, रिमाइंडर आया था हमारे पास 6, और डिवाइजर हमारे पास था 4x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपकी इक्वेशन इसके बराबर हो गई है। ठीक है, तो अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब मैंने इनको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है पूरा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो अब लिमिट्स क्या है हमारे पास, फ्रॉम 0 टू 1/2। ठीक है, फ्रॉम 0 टू 1/2 है, तो इंटीग्रेट करने से पहले मुझे जरा इसको अरेंज करना होगा। 2x प्लस 1 तो अपनी जगह आया बेटा। ठीक है, अच्छा जी, प्लस 6/4 इक्वल टू में लगा दिया, प्लस 6 बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर, क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको 4x स्क्वायर को हटा देता हूं, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2x का होल स्क्वायर, क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर क्या होता हमारे पास, 4x स्क्वायर ही होता, तो वही तो लिखा हुआ था। अब इसको इस फॉर्म में लिखने की वजह क्या हुई, क्योंकि ये हमारे पास 10 की इंटीग्रेशन बन रही है। ऑलराइट, 10 की इंटीग्रेशन क्या होती है, इफ इट्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट आपको करना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन थी। ठीक है, तो अब आपके पास इस पार्ट का, जिसको मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, इस पार्ट का डेरिवेटिव पार्ट आपके पास न्यूमरेटर में होना चाहिए था, तो मेरे पास 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, तो मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 से मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर दूंगा, ताकि ये कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो जाए। अब ये रेडी हो चुका है। 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, इट्स वेरी सिंपल, आपने 2x प्लस 1 पावर में, अच्छा इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं ना। ठीक, 2x प्लस 1 को मैं सेपरेट ऐसे लिख देता हूँ, 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, इट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल 1 आएगा प्लस 3, इस पूरे की इंटीग्रल आपके पास आएगी 10 इनवर्स ऑफ 2x, ये इस पूरे की इंटीग्रेशन आ गई,
और अब पूरे पे लिमिट्स अप्लाई करनी है हमने, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 1/2। ये आपकी लिमिट्स हैं। अब आपने लिमिट्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दी बेटा, तो 1/2 अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस एक्स की जगह 1/2 प्लस 3 10 इनवर्स ऑफ एक्स की जगह 2 और 2 कैंसिल होगा तो 1 ही बच जाएगा, सही ना। ये मैंने पूरी अपर लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट की बारी आ रही है, ठीक है। लोअर लिमिट पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 10 इनवर्स का भी आंसर 0 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने सिंप्लीफाई किया सबको, आपके पास आंसर आएगा 3/4 ब्रैकेट पाई प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, द वेरिएबल एक्स एंड वाई सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 3, गिव योर आंसर इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। बेटा, तो सबसे पहले हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं कि हम y को y के साथ और x को x के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy ओवर y इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1। ये हमने कर लिया अरेंज। देखिए लेफ्ट साइड तो मेरी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगी, मुझे मसला आएगा राइट साइड पर, तो उस राइट साइड को अलग से पिक कर रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन ए है। अब आ जाए राइट के ऊपर, ये लिखा है 1/x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1, यहाँ लगेगा हमारा पार्शल, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आएगा मेरे पास a टाइम्स 3x प्लस 1 प्लस b टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो पहले मैं कहूँगा यार हम x की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो x की जगह -1 पुट किया, b तो 0 हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास a -3 प्लस 1 इट्स -2। तो आपके पास a का आंसर आ जाएगा सिंपली -1/2। ये आपके पास a का आंसर आ गया। इसी तरह जब आप b के ऊपर आओगे तो आप कहोगे अब b के लिए मुझे a को 0 करना है, तो अब मैं कहूँगा अब हम x की जगह प्लेस करते हैं -1/3। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a वाला 0 हो जाएगा, b आ जाएगा, और x की जगह आएगा -1/3 प्लस 1। इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं हमारे पास, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो करो। तो 1 इक्वल्स टू b, -1 प्लस 3 हो जाएगा मेरे पास 2/3, और मुझे b का भी आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, मेरे पास a का और b का आंसर आ चुका है, और जब आपके पास a और b का आंसर आएगा अब आप इसको मेन इक्वेशन में अप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। मेन इक्वेशन कौन सी, तो मैंने ये लिखी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं दैट 1 ओवर x प्लस 1 3x प्लस 1 बेसिकली इज इक्वल्स टू a की जगह आ गया -1/2 टाइम्स x प्लस 1, एंड b इज व्हाट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3x प्लस 1। ये मेरी इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है ना। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं अपनी मेन इक्वेशन में लेकर आ रहा हूँ। तो मेरी मेन इक्वेशन क्या हो जाएगी, dy ओवर y इज इक्वल्स टू, ये पूरी इक्वेशन बराबर हो गई मेरे पास -1/2 x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 3x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका dx। अब ये मेरे पास इक्वेशंस जो हैं ये इंटीग्रेट होने के लिए रेडी हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इंटीग्रेट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी इंटीग्रेट किया, इसको भी इंटीग्रेट किया, ठीक है बेटा। आपके पास dy अपॉन y का इंटीग्रल तो आ जाएगा सिंपल, ln ऑफ y इज इक्वल्स टू -1/2। 1/x प्लस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरे पास, इट इज ln ऑफ x प्लस 1, ये इसका इंटीग्रल आ गया, प्लस 1/2। लेकिन 3/2 नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पार्ट 3 था। तो अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा दैट विल बी ln ऑफ 3x प्लस 1, और लगाना मत भूलिएगा प्लस c। ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई। ऑलराइट, जब आपने इंटीग्रेशन कर दी अब आपने वैल्यू प्लेस करनी है x की और y की, जो आपको दी थी, x और y दोनों बराबर हैं 1 के। तो यहां पे वैल्यू प्लेस करी एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1।
तो ये आएगा आपके पास ln ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -1/2 ln ऑफ 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 1/2 ln ऑफ 3 प्लस 1 इट्स 4 एंड प्लस c। सही है। ln ऑफ 1 तो आपका हो जाएगा 0, शिफ्ट करते हैं राइट पर तो हम लेके जाएंगे तो ये आएगा 1/2 ln ऑफ 2 माइनस 1/2 ln ऑफ 4 इज इक्वल्स टू c। ये आपकी इंटीग्रेशन हो रही है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c हेयर। ठीक है बेटा, चलें जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए पहली बात, ln की पावर ये होती है कि ln कोफिशिएंट को पावर बना देगा, तो हम ये कर सकते हैं, इसको लिखें हम लोग ln ऑफ 2 और ये 1/2 बनेगी इसकी पावर, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस यहां पर ln। अच्छा 4 क्या होता है? 4 होता है मेरे पास 2 स्क्वायर, तो 4 की जगह लिखा मैंने 2 पावर 2। ठीक है, और ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये पावर 1/2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू सी। इससे फायदा ये हुआ कि ये 2 और 2 तो हो गया कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास? ln ऑफ 2 पावर 1/2 माइनस ln ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सी। हमें मालूम है कि ln में अगर हमारे पास माइनस हो रहा हो, उसका मतलब है कि वहां पर डिवीजन हो रही होगी, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू सी। ऐसा ही है, तो इसको मैं कह सकता हूं दैट ln ऑफ 2 1/2 माइनस 1 इट्स -1/2, पावर माइनस कर दी तो मेरे पास c का आंसर आ गया ln 2 ऑफ -1/2। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं दैट c इज इक्वल्स टू पावर का नेगेटिव नीचे ले जाओ तो माइनस ln 2 ऑफ 1/2। ये आ गई मेरे पास c की वैल्यू। जैसे ही आपके पास c की वैल्यू आ जाए, आपने फौरन प्लेस करना है उसको अपनी मेन इक्वेशन में, और ये है मेरी मेन इक्वेशन, इसमें प्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा ln ऑफ y इज इक्वल्स टू -1/2 ln ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 ln ऑफ 3x प्लस 1, और c की जगह आ जाएगा -ln 2 ऑफ 1/2। ये आ गई c की वैल्यू। अब आपको उसने कहा था कि जब y की वैल्यू 2 है, क्या थी? y की वैल्यू 2 थी ना मेरा ख्याल है, x इज इक्वल टू 3। अब आपने यहाँ पर x की जगह 3 प्लेस करना है बस। तो अब ये हो जाएगा बेटा ln ऑफ y इज इक्वल्स टू -1/2 ln, जहां पर भी पूरी इक्वेशन में x है वहां पर मैं 3 प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इट्स 4 प्लस 1/2 ln ऑफ 3 is 9 प्लस 1 10 माइनस ln 2 ऑफ 1/2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ln, ये पावर जाएगी 4 के ऊपर, तो 4 पावर 1/2 इट विल बी 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 ln ऑफ 10 माइनस ln ऑफ 2 पावर 1/2। अब सबके पास ln है। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस 1/2 को भी हम 10 की पावर बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1/2। अब देखें हर तरफ ln चल रहा है मेरे पास। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करूं मैं अगर, तो ऐसे लिखूं ln ऑफ 10 टू द पावर 1/2 माइनस ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 2 टू द पावर 1/2। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लिखा जाएगा ln ऑफ 10 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1/2। लॉग अप्लाई, रूल अप्लाई कर दिया कि जहां माइनस है वहां डिवीजन हो रहा होगा, और यहाँ पे हमारे पास है ln ऑफ y, ln से ln कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू, अब देखें ये भी 10 की पावर 1/2 है, 10 पावर 1/2 और ये 2 पावर 1/2, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास 5 टू द पावर 1/2, मतलब रूट में आ जाएगा, और ये वाला 2 नीचे एज इट इज रहेगा, तो आपका आंसर आ गया √5/2। ये आपका आंसर है। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Question number 10 from vectors. Points A and B have position vectors 2i plus j plus k and I minus 2j plus 2k. The line L has a vector equation. अच्छा, vector की आपको equation मालूम है. Find a vector equation for the line through A and B. अच्छा जी, अब आपने A और B की vector equation find करनी है। तो सबसे पहला काम तो मैं करूंगा कि AB का vector निकाल लूंगा। ठीक है ना, AB क्या होगा मेरे पास? AB is
ओ बी माइनस ओ ए, ये मेरा वेक्टर ए बी आ जाएगा। अच्छा, आपको पता है ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपके पास एक वेक्टर बी है। मैंने आपसे कहा ओ बी माइनस ए है, तो ये आ जाएगा आई माइनस टू जे प्लस टू के माइनस टू आई माइनस जे माइनस के। सो आई माइनस टू आई माइनस थ्री आई माइनस टू माइनस जे माइनस थ्री जे प्लस टू के माइनस के प्लस के, तो ये वेक्टर ए बी आ गया। अब मुझे चाहिए वेक्टर की इक्वेशन, ठीक है। उसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू ए का वेक्टर क्या है मेरे पास, इट्स टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस के। ये आपके पास आ गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी, क्योंकि मैंने ए बी लिया था इसलिए मैंने पॉइंट ए को पुट किया। ठीक है बेटा, पर एक मिस्टेक नजर आ गई, आई माइनस टू आई तो मेरे पास माइनस आई होगा खाली, बस ये होगा, माइनस थ्री कर दिया माइनस आई होगा, तो माइनस आई माइनस थ्री जे प्लस के इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास आर की इक्वेशन। नेक्स्ट वन, find the acute angle between the direction of AB and L, give your answer in degrees। ऑलराइट, तो अगर आपको कभी एंगल निकालना हो, चले मैं वर्किंग यहाँ करूँ ना, ऊपर नीचे स्क्रीन करनी पड़ेगी बार बार। अगर मुझे एंगल निकालना होता है, मेरा फॉर्मूला सेम होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। ये आपका वर्किंग फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन वेक्टर लेना है किसका, ए बी का और एल का, ठीक है। ए बी का जो डायरेक्शन वेक्टर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, वो है मेरे पास ये, दैट इज द डायरेक्शन वेक्टर फॉर ए बी, डायरेक्शन ऑफ ए बी। और जो एल का डायरेक्शन वेक्टर आपके पास है वो ये है, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर फॉर एल। तो मेरे पास जो ए हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, ए इज माइनस आई माइनस थ्री जे एंड प्लस के, और जो मेरे पास बी होगा यहां पर, दैट इज इक्वल्स टू आई माइनस थ्री जे माइनस टू के। ठीक है बेटा, अब वैल्यू प्लेस करते हैं, तो ए डॉट बी, सो ए इज व्हाट, a is minus 1 minus 3 and 1, b is 1 minus 3 and minus 2, ठीक है, is equals to मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट। अब मैं ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 एंड कॉस ऑफ थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 1 इंटू माइनस वन इंटू वन इट्स माइनस वन प्लस थ्री थ्री जार 9 प्लस माइनस माइनस टू वन जार 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 2 11 अंडर रूट 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, दैट इज इक्वल्स टू 61.1 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, show that the line through A and B does not intersect। अगर आपको ये शो करना हो कभी लाइन आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो आप कैसे करते हैं, आप पहले अपनी इक्वेशन को लेकर जाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो मेरे पास A एंड B डज नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा जी, एक मेरी बनेगी A और B वाली इक्वेशन जो मैं बना चुका था यहाँ पर, दैट इज 2i प्लस जे प्लस लैम्डा। तो अगर मैं इसकी एक्स वाई जेड बनाऊँ यहाँ पर, चलेंगे बना लेता हूँ, चले आगे करता हूँ यार। अच्छा जी, एक्स वाई जेड की फॉर्म में मुझे चाहिए, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम ए बी से। तो बेटा ए बी का पैरामीट्रिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट 2 है और यहाँ पर माइनस वन लैम्डा है, तो ये 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो एक्स आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस लैम्डा फॉर ए बी, और वाई क्या हो जाएगा, आप देखें यहाँ पर जे 1 है और यहाँ पर जे माइनस 3 है, तो माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 3 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा ये आ जाएगा। और के क्या आ जाएगा मेरे पास, लास्टली यहाँ पर के 1 है और यहाँ पर भी के 1 है, तो 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा मेरे पास के, 1 प्लस लैम्डा। ये तो मैंने इक्वेशन ए बी का किया। अब आते हैं जरा एल के ऊपर, एल का पैरामीट्रिक बनाते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड करके। एल इक्वेशन आपको दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है ये रही। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 और 1 म्यू, 1 प्लस म्यू हो जाएगा ना, तो ये आएगा मेरे पास 1 प्लस म्यू, ये इसका x कंपोनेंट आएगा। अच्छा जी, y क्या हो जाएगा मेरे पास, देखें यहाँ पे J2 है और ये हो जाएगा 2 माइनस थ्री म्यू, और ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू म्यू के हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास J आ गया 2 माइनस
3 म्यू और क्या आया था -3 -2 म्यू। जब आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाए और आपको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप पहले x को x से इक्वेट करें, ठीक है ना। तो अगर मैं x को x से इक्वेट करूं तो मेरे पास आएगा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू। मैं ये कह सकता हूँ 2 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू। ये इक्वेशन आ गई x को इक्वेट करके। अब बनाते हैं इक्वेशन y को इक्वेट करके। तो ये आएगा मेरे पास 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 म्यू। मैं ये कह सकता हूँ 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू। ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इन दोनों को हम करेंगे साइमल्टेनियस सॉल्व अब, ठीक है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब जो पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या रहेगी 3 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू। और जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू, ठीक है ना। अब दोनों को एलिमिनेट कर देंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 3 प्लस 3 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/3। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। आपके पास ये लैम्डा आ जाए, अब आप इससे म्यू निकाल सकते हो। तो लेट सपोज मैं इक्वेशन 1 में प्लेस कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस म्यू, और म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, तो 2/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास बेटा लैम्डा भी आ गया, म्यू भी आ गया। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 उठानी है, कौन सी वाली, जेड वाली। वो क्या इक्वेशन बनेगी 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू -3 माइनस 2 म्यू। लैम्डा और म्यू दोनों यहाँ पर प्लेस कर दें। तो ये आएगा 1 प्लस लैम्डा कितना आया था हमारे पास 1/3 इज इक्वल्स टू -3 माइनस 2, और ये आ गया 2/3। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3, और ये आ जाएगा -3 माइनस 4/3 -12 और -8 -16/3, -16/3 और 4/3 -3 3 आर 9, सॉरी 3 3 आर 9 -13 हो जाएगा। अब -13/3 और 4/3 दे आर नॉट इक्वल ना। तो सिंस 4/3 is not equal to -13/3, line through A and B does not intersect with L। ये आपकी स्टेटमेंट आ गई, ये आपकी वर्किंग आ गई, और ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द x, अच्छा द डायग्राम शोज द कर्व y इक्वल्स टू sin x cos 2x, और आपको रेंज दी हुई है एंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट m। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ m, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो m के बारे में उसने आपको क्या कहा हुआ है, मैक्सिमम पॉइंट। हमें पता है मैक्सिमम पॉइंट पे हमारा जो dy/dx होता है वो 0 होता है। हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू sin x cos 2x। यहाँ पे लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो हम यूँ कर देंगे, हम कहेंगे यार u बराबर है हमारे पास sin x के, और v हमारे पास बराबर है cos 2x के। तो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा हमारे पास cos x, और डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा हमारे पास -2 sin 2x। अब हम फार्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं। फार्मूला में कहता है u डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज -2 sin 2x प्लस v cos 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज cos x, और ये बराबर है हमारे पास इक्वल टू 0, क्योंकि हम निकालें स्टेशनरी पॉइंट, ठीक। अब आपके पास यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं। और उससे पहले हमें नजर आया कि यार sin 2x की हमारे पास आइडेंटिटी ओपन हो सकती है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, इट्स -2 sin x, ठीक है। sin 2x की जगह मैं उसकी आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूँ, दैट इज 2 sin x cos x, ठीक है, प्लस cos x अपनी जगह रखा मैंने, cos 2x। अब हमारे पास cos 2x की भी आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। चलें उसको अभी बाद में अप्लाई करूंगा, पहले सिर्फ यहाँ पर cos 2x लिख रहा हूँ ताकि ज़रा सिंप्लीफाई कर सकूँ अपना आंसर को।
अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन अभी इसमें नहीं आया, ये ना cos x मेरे पास यहाँ भी है, cos x मेरे पास यहाँ भी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पूरी इक्वेशन से cos x को कॉमन निकाल लूँगा। तो जब आपने cos x को कॉमन निकाला तो अब बचा क्या आपके पास बचा माइनस माइनस, ये आ जाएगा -4 साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस cos 2x इक्वल्स टू 0। अब दोनों को आप 0 से इक्वेट कर दो, तो एक तो आएगा मेरे पास cos x इक्वल टू 0 और दूसरा मेरे पास आएगा cos 2x माइनस 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा cos 2x इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर x। और यहाँ पर अगर मैं देखूं cos x इक्वल टू 0, अच्छा cos x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें पता होगा cos हमारे पास 0 कहाँ होता है, cos 90 पे 0 होता है और cos 270 पे 0 होता है। तो इसके तो आंसर हम निकाल लेंगे, x इज इक्वल्स टू 90 का मतलब हुआ π/2 और 3π/2। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर हमें बाद में पता लगेंगे जब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे cos 2x वाले को, ठीक है बेटा। अब cos 2x की यहाँ पर आइडेंटिटी आपको प्लेस करने का टाइम आ चुका है, तो मैं इसको सवाल को यहाँ स्टार्ट करता हूँ। cos 2x इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास था। अब मैं cos 2x पर आइडेंटिटी ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये आएगा मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी ब्रेक हो गई, इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, वहाँ गया तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो अगर मैं इसको करता हूँ 10 स्क्वायर x तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/5। और यहाँ से मैं x इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे, पहले तो आपने रूट अप्लाई कर दिया भाई, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 1/5 और उसका रूट दैट इज 0.4472। तो मैं कहूँगा कि यार 10x बराबर आ रहा है, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 10x मेरे पास आ जाएगा 0.4472, 0.4472, ठीक है बेटा। और अब इसका आपने क्या करना है, इसका आपने tan इनवर्स करना है। तो the value for x is 0.421, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, हमारे पास जो रेंज दी हुई है, हमें डोमेन दी हुई है, दैट इज ओनली π/2। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ रहा है 10 का, इट्स 0.421, तो ये मेरे पास m का x कोऑर्डिनेट आ गया, जिसका मुझसे क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड करने को, इट्स 0.421। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। आंसर आगे क्या है भाई इसका, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन u equals to cos x, find the area of the shaded region enclosed by the curve and the x-axis in the first quadrant gives your answer in most simplified form, ठीक है। चले अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ ताकि अपनी सिस्टम बार बार ना करनी पड़े। सब्स्टिट्यूशन मुझे क्या दी है, u इज इक्वल्स टू cos x दिया हुआ है आपको, तो ये मैंने स्टार्ट किया अपना पार्ट 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेरे पास आ गई, u इज इक्वल्स टू cos x। जैसे ही मेरे पास सब्स्टिट्यूशन आए ना, सबसे पहले आप उसको डेरिवेट कर दो, तो मेरे पास ये आ जाएगा du/dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ से निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, मुझे dx निकालना होगा ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि du क्या हो जाएगा मेरे पास, du इज इक्वल्स टू माइनस साइन x dx। ये आ गया मेरे पास, du का एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू साइन x एंड cos 2x, ये आपके पास इक्वेशन है, और उसने आपसे कहा कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है, राइट, वी नीड टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, अब देखिएगा कैसे हमारी सब्स्टिट्यूशन इस पे अप्लाई होगी, ये भी देखना है आपने। हमने इंटीग्रेट अप्लाई किया, वी हैव dx हियर, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटीग्रल ऑफ cos 2x sin x dx, क्या कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसको अरेंज किया, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि sin x dx, ये मुझे पता था, sin x dx क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस du, राइट। मैंने कहा यार इसकी जगह तो आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपनी जगह,
इसकी जगह तो मेरे पास आएगा माइनस डी यू, जो मैंने ऊपर से निकाल लिया था। अब आ जाए cos 2x पर। cos 2x पे लगाएंगे हम यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे पहले तो। इंटीग्रल ऑफ cos 2x क्या होता है मेरे पास, इट्स cos स्क्वायर x माइनस 1 टाइम्स ये हो जाएगा माइनस डी यू, हो जाएगा बेटा। अब cos स्क्वायर x इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखें, आपको सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का दिया हुआ है ना, तो मैं अगर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूं मैं ये कह सकता हूं कि cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा u स्क्वायर के, हो जाएगा ना। तो जहां पर cos स्क्वायर x है वहां पर कौन आ जाएगा मेरे पास, अब ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स माइनस डी यू। तो आपका पूरा फंक्शन जो है वो आ गया u की फॉर्म में। अब कहां पर आएंगे हम, अब हम आएंगे लिमिट्स के ऊपर। अच्छा, लिमिट्स की कहानी यहाँ थोड़ी लंबी है क्योंकि मुझे अभी तक यही पॉइंट नहीं पता, तो लिमिट्स कैसे निकालूंगा। तो पहले तो मैं निकालता हूँ ये पॉइंट, लेट सपोज इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ आपसे, तो ए निकालने के लिए मेरे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस 2x, यहाँ पर मुझे y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो आपने जब y को 0 पुट किया तो आपके पास क्या आएगा, साइन x और cos 2x, ठीक है। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, यहां से इक्वेट करें, साइन x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू 0। तो साइन हमारे पास 0 कहाँ होता है, साइन को तो आप देखो साइन 0 पे 0 होता है, 180 पर होता है और 360 पर होता है, तो ये तो 0 आ गया। cos कहाँ 0 होता है, cos हमारे पास 90 पे 0 होता है, तो यहाँ पर आएगा 2x इज इक्वल टू 90 को क्या बोलते हैं हम, 90 को हम बोलते हैं पाई ओवर 2। तो मेरे पास जो x की लिमिट आ रही है दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 4। तो x की बेटा दो लिमिट आ गई मेरे पास, एक पाई ओवर 4 और एक तो मेरे पास ओरिजिन पॉइंट जो है वो 0 चल रहा होगा, तो लोअर लिमिट 0 है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि मेरे पास जो फंक्शन की लिमिट्स हैं, चलें यहाँ हेडिंग डाल देते हैं हम, फंक्शन की जो लिमिट्स है मेरे पास उसमें एक लिमिट x की 0 आ रही है और दूसरी लिमिट जो x की आ रही है अपर लिमिट इट्स पाई ओवर 4। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये तो x की लिमिट्स हैं, हमारा तो पूरा क्वेश्चन u की फॉर्म में आ चुका है, तो अब मुझे u की लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, राइट। अब मैं आ रहा हूँ लिमिट्स ऑफ u के ऊपर, लिमिट्स ऑफ u, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास u का फंक्शन क्या था, u मेरे पास था cos x, इसको मैं दो दफ़ा लिखूंगा क्योंकि एक अपर लिमिट के लिए और एक लोअर लिमिट के लिए। तो जब मेरे पास लोअर लिमिट 0 था तो मैंने कहा 0 इज इक्वल्स टू कॉस x, ठीक है। और इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, x cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 cos x ना। अच्छा, मैंने u की जगह 0 लिख दिया, तभी तो कर मसला क्या हो रहा है बेटा, ये u इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x की जगह 0 आ जाएगा, तो u आ जाएगा मेरे पास सिंपल 1। ये आ गई मेरे पास लोअर लिमिट। अच्छा, ये कौन सी लिमिट है, लोअर है, मैंने x की यहाँ पर लोअर वैल्यू पुट की, तो मैं कहूँगा ये मेरे पास लोअर लिमिट आ रही है। इसका बड़ा गेम है बेटा, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब मैं आ रहा हूँ अपर लिमिट पर, तो अपर लिमिट मेरे पास क्या आ रही है, पाई ओवर 4, तो मैंने कहा u इज इक्वल्स टू कॉस x की जगह आ गया मेरे पास पाई ओवर 4। ऑलराइट, तो जब आपने पाई ओवर 4 पुट किया तो आपके पास u का आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये मेरे पास किसकी लिमिट आ रही है, ये मेरे पास अपर आ रही है, ठीक है बेटा, ये अपर लिमिट आ गई। तो अब मैं जरा अपने क्वेश्चन को यहाँ पर फुल फॉर्मुलेट लिख रहा हूँ यहाँ पर अलॉन्ग विद द लिमिट। तो इंटीग्रल ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स माइनस डी यू, और लोअर लिमिट कितनी आई थी मेरे पास 1 और अपर लिमिट आई थी मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है जो काफी काम का इशू था कि यार ये जो वैल्यू आ रही है ना ये छोटी है मेरे पास एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हमने जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ी है उसमें हमेशा हम फ्रॉम लोअर टू हायर जा रहे होते हैं। अगर हायर टू लोअर है तो आपको यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका कैसे, अब मैंने ये कहा नहीं भाई लिमिट तो मेरे पास लोअर लिमिट छोटी होती है, तो इसको मैंने कहा ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा 1। अब इसके फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क ये पड़ेगा कि आपने अपने पूरे इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद अ नेगेटिव साइन। ये आपने लिमिट चेंज करी तो ये काम करना पड़ेगा। तो अब मेरा आंसर ऐसा रहेगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, लोअर अपर 1 है, यू स्क्वायर माइनस 1 और डी यू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू प्लस डी यू हो जाएगा। ये माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है बेटा। अब मेरा फंक्शन पूरा रेडी हो गया इंटीग्रेट करने के लिए।
तो यू स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यू क्यूब अपॉन 3, -1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा u, और लिमिट्स क्या है मेरे पास, फ्रॉम 1/√2 से लेके आ रही है मेरे पास 1 तक। ऑलराइट, तो अब आपने सिंप्लीफाई यहाँ पर करना है, लिमिट्स पुट करनी है। जब आपने अपर लिमिट पुट करी, एक मिनट, cos 2x, देखें जहां पर एक गलती हो गई ना, cos 2x की जो आइडेंटिटी होती है इट्स 2 cos स्क्वायर x, cos 2x की जगह होता है 2 आता रहेगा, देखें ये एक चीज मिस हो गई थी, ठीक है, तो 2, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इट विल बी 2u क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा 2, तो cos स्क्वायर 2x की होती है 2 cos स्क्वायर x। ऑलराइट, तो 2q u क्यूब अपॉन 3 माइनस u, लिमिट अप्लाई कर दी, अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं, अपर लिमिट क्या आ जाएगा बेटा, u की जगह 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 2, और u की जगह आएगा 1/√2 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/√2। सारी लिमिट्स आपने अप्लाई कर दी, सिंप्लीफाई करना है आपने, 2/3 -1 क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस सिंप्लीफाई किया इस पूरे को, तो आपके पास आंसर आएगा -√2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू √2 - 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये आपका फाइनल आंसर है इस पूरे क्वेश्चन का। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको पेपर क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को एज अर्ली एज पॉसिबल मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नए पेपर के साथ। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, इसका इंशाल्लाह फ़ायदा आप